मैं ये अवार्ड अपने माता-पिता को, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, मैं अपने पिताजी को ख़ास करके अपनी माँ को ये समर्पित करती हूँ। I'm very grateful to my parents because it's because of my parents I am who I am. And I would also like to thank our Indian Prime Minister Narendra Modi ji. माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो वैसे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी कविताओं को, मेरे बांसुरी को बहुत प्यार करते हैं, और मैं उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ, नरेंद्र भाई मोदी जी को भी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं और हमेशा मुझे आशीर्वाद देते हैं जहाँ भी हैं आप लोग। और आज ये जो दिन मुझे दिखाया है ईश्वर ने, प्रभु ने, उसके लिए मैं बहुत ऋणी हूँ आप सबकी। और ये पुरस्कार, अवार्ड जो भी है, ये मेरे सबसे पहले गुरु जो हैं वो मेरे माता पिता हैं। मैं ये अवार्ड अपने माता पिता को, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, और मैं उनको बहुत याद कर रही हूँ, कल से ही बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, मैं अपने पिताजी को ख़ास करके अपनी माँ को ये समर्पित करती हूँ, डेडिकेट करती हूँ ये अवार्ड। ये मेरा 50वां साल है, ये मेरा 50th ईयर था। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यूथ को जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, जो लोग जसविंदर नरोला को फॉलो? जी, मैं तो बहुत लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स लेके बड़ी हुई हूँ, और उन चीज़ों पे मैं चल रही हूँ, उस मार्ग पे चल रही हूँ। एक सच्चे, मेहनती और हिम्मती, ये सब मैंने अपने जीवन में जो है वो देखा और किया और समझा और सीखा। तो हिम्मत बहुत ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है, शॉर्टकट्स कभी नहीं लिए, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि उस परमात्मा पे श्रद्धा और सबूरी जिसे कहते हैं। मैंने हमेशा ईश्वर के निर्णय को जो है सबसे ऊपर माना है, भले वो मुझे कुछ मिला है या नहीं मिला है। मैंने हमेशा यही सोचा है कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। सो गुरबानी में भी यही हम लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं कि जो उसका हुक्म है, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। जब उसका हुक्म होता है तभी चीज़ें होती हैं जीवन में। अपनी मेहनत करते जाइए, ठीक है, उससे डरिए मत और आगे बढ़िए, सच्चे मार्ग को अपनाइए। Yesterday, last night I was in Delhi. I did a concert at the India Habitat Center. And after finishing off the concert, I was having dinner with the rest of my musicians, with my band. And that is when a friend of mine called me up and told me at about 10 o'clock in the night that you won a Padma Shri award. And I thought he was joking. And then I put down the phone, and then lots of messages started coming in. And then I went to the website of the Padma Awards and I downloaded the PDF and I saw my name was there. So it came as a huge, huge shock to me that I'd won the Padma Shri. And of course, I was very, very thrilled. Now, in the past, of course, I've won Grammy Awards and I've won 3 Grammy Awards. But every single Grammy Award is about a certain work that I've done, one particular album or one particular song. So it's been about that. Whereas the Padma Shri is about my career as a whole, So that is why it's extra special, and also because it's an award that has been awarded by my own nation. So it feels amazing to actually win this award, and I'm absolutely thrilled. This is a joyous moment in your long journey in the music industry. How happy are you? I'm extremely happy with the Padma Shri. I mean that words cannot describe how happy I am to be, to be recognized and to be validated for my entire career by our own government, by our own nation. So it feels amazing. I feel that this is the biggest honor that I've ever received in my life. At this moment, whom would you like to remember? Family and your music director and your guru? So I believe that, every single award, like for example, the Padma Shri in this particular case, it's a platform for doing bigger and better things. People normally look at it as being an end goal. For me, it is a platform for a new beginning to do bigger and better things for our nation through music. And of course, I'm very grateful to my parents because it's because of my parents I am who I am. And also,
I mean that for the kind of support that they've given me, the way that they've raised me, all of my life choices, I would attribute to them. And I would also like to thank our Indian Prime Minister, Narendra Modi ji, simply because this career choice that I made of creating music purely on social and environmental causes was inspiration from Prime Minister Modi, and I believe that that is what has made my career what it is, and it's made my career very, very fulfilling. Because now when I make music, I feel very, very good when I make music because I'm making music with a purpose. मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे वर्षों की साधना को आज भारत सरकार ने मुझे नवाजा है इस पद्मश्री, इस उच्च बहुत प्रेस्टिजियस सम्मान से, और मैं अपने गुरुओं को भारत रत्न पंडित रविशंकर जी और पंडित विजय राघव राव जी और मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को मैं सबको याद करना चाह रहा हूं, जिन्होंने मुझे इतना साथ दिया इस कठिन यात्रा में कि मैं यहां तक पहुंच पाया। और होम मिनिस्ट्री को खास करके, और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो वैसे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी कविताओं को, मेरे बांसुरी को बहुत प्यार करते हैं, और मैं उनको भी धन्यवाद दे रहा हूं, नरेंद्र भाई मोदी जी को भी। मेरा एक ही संदेश युवा पीढ़ी के लिए है, वो ये है कि आप शॉर्टकट मत करिए, आप छोटे रास्ते से जाने का प्रयास मत करिए। आप कठिन मार्ग लगता है मगर आप साधना करिए, जो मैंने किया। आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं मगर सब्जेक्ट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, विषय के प्रति प्रेम होना चाहिए। मैंने 8-8 घंटे मैंने अभ्यास किया। एक वक्त था 8 घंटे रोनू मजुमदार प्रैक्टिस करते थे। आज भी मैं 62 साल की उम्र मेरी हो गई और लोग कहते हैं कि आपको बहुत देरी से पद्मश्री मिला, मगर मैं कहता हूं जब भारत सरकार ने दिया, मैंने 2 झोली फैलाकर उसको ग्रहण किया। तो आप सभी युवा पीढ़ी, आप अभ्यास से मत डरिए, आप अभ्यास करिए तो आपके जगह को कोई हिला नहीं पाएगा। आज सबका तो इंटरनेट हो गया है, इसमें कितना फर्क देखते हैं आप? मैं एक इसमें सूखापन देखता हूं। इससे लोगों को टेक्निकल चीजें तो मालूम पड़ जाती है मगर आत्मा से जोड़ नहीं पाते। हमारे ज़माने में जब हम गुरु के चरण में बैठते थे तो एक वाइब्रेशन गुरु के शरीर से निकल के हमारे शरीर में प्रवेश करता था, और वो वाइब्रेशन होता था गुरु का आशीर्वाद, एक एक स्वरों की जानकारी, एक एक स्वरों की सच्चाई कि कौन सा वो स्वर है जो दिल में लगेगा तो आंख में आंसू आएगा, वो कौन सा स्वर है जरा देखो तो, ऐसे गुरु बोलते थे। तो वो स्वर हम बजाते थे तो बोलते थे नहीं 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 नहीं, अभी तक दिल में लगा नहीं, और प्रयास करो। तो इन प्रयासों को मैंने सफल किया और इंटरनेट के ज़माने में वो कहीं खो गया ऐसा लगता है मुझे। और ये पद्मश्री से मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है समाज के प्रति, और मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, ये आपसे वादा है। मेरे फैंस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी फैंस ये लिख रहे हैं इंटरनेट पे मुझे कि गुरुजी आपको तो 10 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था। तो मैं सब फैंस से ये कहना चाहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, और इससे मेरी साधना और बढ़ गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो प्यार है वो मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। ये अवार्ड तो गवर्नमेंट ने मुझे एक शक्ति प्रदान दी है, एक टॉनिक के जैसा मुझे दवाई दिया है। इस दवाई से मैं और काम कर पाऊंगा अगले 40 साल।